دنیا کے فیشن نے رابعہ کی زندگی برباد کی، اسے موت کے گھاؤ اتار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں آج کی لذا خیز کہانی۔ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آج کل ساری دنیا فیشن کرتی ہے، میں نے فیشن کیا تو کیا ہوا؟ آج کل کھلے بال رکھنا فیشن ہے، سب لوگوں کے کھلے بال ہیں، جب میں نے رکھا تو کیا ہوا؟ آپ تو ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، مگر آپ ہر وقت میرے بالوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، مگر اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کے چھپا کے کیوں رکھوں؟ ہر وقت چٹیا باندھ کے رکھو، مغرب کے وقت بال کھلے نہ رکھو، درخت کے پاس نہ جایا کرو، کسی کا سایہ تم پر پڑ جائے گی، کسی کی نظر لگ جائے گی، بھوت پریت تم پر عاشق ہو جائیں گے کھلے بال دیکھ کر۔ یہ لو بھائی، آج تک انسان عاشق نہیں ہوا۔ اماں بات کر رہی ہے جنوں کی، جن میرے اوپر عاشق ہو جائیں گے؟ اماں واہ! رابعہ نے اپنی اماں کی نقل اتاری۔ اماں نے ایک مکہ اس کے کمر پر مارا۔ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولتی رہتی ہو، تمہیں تو پتا ہے، تم نے قرآن پاک پڑھی ہے، سورت جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے سورت فلق اور سورت ناس کا تلاوت کر کے پھر سو جاتے تھے۔ میری اماں ہر وقت میری چٹیاں باندھتی رہتی تھی، میرے بالوں میں تیل لگا کر میری چٹیاں باندھ دیتی تھی، لیکن تمہارے بال بھی میرے اوپر گئے ہیں، اتنے لمبے گھنے ہیں، تمہیں بھی ہر وقت اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر وہ رابعہ کیا جس کسی کی بات سنے؟ ماں باپ کی ایک لاڈلی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا تھی، اسی لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ہر ناز نخرے اٹھاتے تھے، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتے۔ ایک دن اسے بھی رخصت کرنا ہے، وہ گھر داماد بنانے کے خلاف تھے، ان کے پاس ہر چیز تھی، وہ انہی کی بیٹی کی تھی، لیکن داماد رکھنے کے خلاف تھے۔ رابعہ نے انٹر کر لیا تھا، قد اتنی لمبی، اس کے ماکوزہ رنگ، بہت خوبصورت آنکھیں، اس کے لمبے لمبے بال بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ لیتے تھے، لمبے لمبے بال جب کھولتی تھی تو آبوشاروں کا گمان لگتا تھا۔ ہر مہینے مٹھی جتنے بال کاٹتی تھی، پھر بھی گھٹنوں سے نیچے پڑ جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے شمس نے ایک پارٹی میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی ایک لوتی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی، اس کی بیوہ ماں اور اس کا ذاتی گھر۔ ماں باپ نے شادی کرنے میں دیر نہ کی، کیونکہ وہ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ شمس اس کے ساتھ بہت خوش تھا، اس کی ساس بھی خوش تھی، تو ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ شمس اس کے بالوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شمس رات کو اس کے بال کھول کر اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپا کر سو جاتا تھا۔ شمس کہتا تھا کہ دن بھر تمہارے بال کھلے رہیں، مجھے تمہارے کھلے بال بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کی ساس تو یوں تو اچھی تھی، لیکن ماں کی طرح کہتی تھی ہمیشہ اپنے بالوں کو باندھ کر رکھو، مگر اس کی ساس اسے ہر وقت ٹوک ٹوک کر بیدار کر دیتی تھی، کیونکہ شمس کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اس کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ شمس ایک بہت اچھے کمپنی میں جاب کرتا تھا، اسے کبھی اس ملک تو کبھی دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد رابعہ کو اپنے ماں باپ کے گھر جانی نہ پڑی، کیونکہ شمس دوسرے کام سے باہر جاتا تھا تو اس کی والدہ اکیلی رہ جاتی تھی، اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہ جا سکتی تھی۔ ایک دن شمس دوسرے کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا، اس نے خیال ظاہر کیا میں اپنے والدہ کے پاس جاؤں گی، تو شمس ہنس کر کہنے لگا تم کہو یا نہ کہو میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا، کیونکہ اماں میرے ساتھ خالہ کے ہاں ملنے جائے گی۔ رابعہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، ہر لڑکی اپنے میکے کے بارے میں سوچتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ رابعہ کے ماں باپ اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن رابعہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ شمس کے گھر میں کوئی لون نہیں تھا۔ یہاں پر بہت بڑا گھر تھا اور بہت بڑا لون تھا، لون میں پھول پودے لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ایک جامن کا درخت تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جامن کے درخت کے جڑ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کے نیچے بیٹھ کر میگزین پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جب میکے آئی ہوئی تھی تو شام کی چائے اسی درخت کے نیچے پی لیتی تھی اور وہاں پر مغرب کی اذان تک رسالوں کے ساتھ پائی جاتی تھی۔
शम्स को गए हुए एक हफ्ता गुजरा था और लेकिन आने में भी एक हफ्ता बाकी था। राबिया को उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। अम्मा ने सोचा ये अकेली पड़ जाएगी कमरे में, इसके लिए इसके साथ सोने का प्लान बनाया, लेकिन राबिया ने मना किया। नहीं नहीं अम्मा, मेरी नींद ख़राब हो जाएगी। आप रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ जाती हैं ना। रात के 2 बज रहे थे। राबिया को वहशत महसूस होने लगा। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसने सोचा अपने अम्मा को बुला कर लाऊं। फिर उसने कमरे में कुंडी लगाकर तकिए पर सर रखकर अपने बाल खोलकर तकिए पर बिछाकर सोने की कोशिश कर रही थी। वह अम्मा के दरवाजे पीटने पर उसकी आंख खुली। अम्मा कहने लगी, अरे गधे घोड़े बेचकर सो रही हो क्या? बस अम्मा आ रही हूँ। ये कहकर वो बेड से उतरी। उसे चक्कर आ गई, वो गिर गई। वो हिम्मत करके उसने कुंडी खोला तो अम्मा कहने लगी, क्या हुआ, तुमने कुंडी क्यों लगाई? अम्मा पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुंडी लगा दी। अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, खाती पीती जो चिड़िया जितनी हो, जाहिर सी बात है चक्कर तो ज़रूर आएंगे। कितनी बार कहा है तुम्हें कमज़ोरी हो रही है। तुम्हारे अब्बू को जल्दी नाश्ता करने की आदत है, लेकिन वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अरे अम्मा आप चलो, मैं आती हूँ। आप ऐसा करो, चलो मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। राबिया वॉशरूम में चली गई, लेकिन उसे कमज़ोरी हो रही थी। वो चाह रही थी कुछ देर और आराम कर लूं। कमज़ोरी की वजह से कुछ दिनों में उसकी रंगत सरसों के जैसी पड़ गई, मगर उसका खाने में भी दिल नहीं चाह रहा था। उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अम्मा चाह रही थी कि मैं उसके साथ सो जाऊं, मगर उसने साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया। अम्मा सोचने लगी, और राबिया तुम्हें पता है, तुम्हें मेरी दोस्त मायरा याद तो होगी। तुम्हारी शादी के बाद वो दूसरे मुल्क चली गई, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बेटी यहाँ पर है, वो हाफिज़ कुरान है। चलो उससे मिलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर कायनात से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। डॉक्टर ने चेकअप रूम में लेकर गई, फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और मुस्कुराकर कहने लगी, आंटी आपका तजुर्बा बिल्कुल ठीक है। राबिया प्रेग्नेंट है, राबिया माँ बनने वाली है। राबिया बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बुझा सा लग रहा था। आंटी राबिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। माँ के पाँव तो ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, और माँ कहने लगी, ये बात शम्स को, तुम्हारे और सास को पता चलनी चाहिए, और किसी को नहीं, वरना नज़र लग जाएगी। उफ अम्मा, नज़र क्या बला है। हज़ारों औरतें रोज़ माँ बनती हैं, लेकिन मैं तो पहली बार माँ बन रही हूँ। बेटा, नज़र लगना तो हदीस में लिखा हुआ है, हादिसों जलने वालों की नज़र लग जाती है इंसान को। 2-4 महीने की बात है, इसके बाद खुद को सब पता चल जाएगा। शम्स एयरपोर्ट से सीधा ससुराल चला आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बस नहीं चल रहा था सास ससुर के आगे राबिया को गले लगाता। यूं ही वो कमरे में गया, राबिया को अपने गोद में उठा लिया और कहने लगा, यार इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मेरे साथ शेयर नहीं की। ये खुशखबरी आंटी ने मुझे सुनाई। मुझे तो पता है कमज़ोरी की वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पा रही थी। 1 महीने में तुम्हारा वज़न इतना बढ़ गया। वाह भाई, ऐसा लग रहा है 9 माह के बाद तुम किसी जिन का बच्चा पैदा करोगी। खुदा ना करे शम्स, तुम्हारे शौहर किसी जिन से कम है क्या? राबिया अपने शौहर के साथ वापस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जब तक मामा नहीं आएंगी तुम रोज़ यहाँ पर रहोगी। रोज़ ऑफिस से मैं यहाँ पर आऊँगा, लेकिन घर में तुम अकेली रहोगी। इससे बेहतर है तुम यहीं पर रहो। अंकल आंटी तुम्हारे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शम्स, आप भी हमारे साथ रुक जाएं। नहीं नहीं, क्योंकि आपको खाने की वजह से तकलीफ़ होगी। सुबह का नाश्ता मैं खुद बना लूँगा, दोपहर का खाना ऑफिस में मिल जाएगा, और रात का खाना तुम्हारे साथ खा लूँगा। कैसा लगेगा? मगर एक मसला होगा। वो क्या? तुम्हारी जुल्फ़ों की बिना मुझे नींद नहीं आएगी। दिन गुजर जाएगा, मगर रात तड़प तड़प कर गुजरेगी। राबिया ये सुनकर हंसने लगी। राबिया का वज़न बहुत बढ़ता जा रहा था और कमज़ोरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आलिया के भूख भी बढ़ती जा रही थी। दिन भर खाती थी, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। शम्स दोपहर का खाना 11 बजे खाकर उसके पास चला जाता था। एक रात माँ पानी पीने के लिए उठी। रात को देखा राबिया के कमरे से खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी। माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ ने चाबी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। माँ ने उसका लिबास ठीक किया और घबराते घबराते उसे जगाने लगी।
अब्बा ने चीख की आवाज़ सुनी तो अब्बा भी कमरे में आ गए और बमुश्किल राबिया की आंखें खुली और कहने लगी, क्या हुआ अम्मा, आप दोनों मेरे कमरे में क्यों आए हो? अम्मा ने अब्बा को वापस कमरे में भेज दिया और राबिया से कहा, मुझे तुम जिस हालत में मिली हो इस हालत में मेरे होश उड़ा दिए। सच बताओ, तुम्हारे कमरे में कौन आया था? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? राबिया को गुस्सा आया और कहने लगी, अम्मा बंद कमरे में कौन आ सकता है? आपको तो मेरी हालत दिख रही है। मेरे पूरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा है जैसे कोई ट्रैक्टर मेरे ऊपर से गुजरा हो। अम्मा मुझे लगता है ये बच्चा मेरी जान लेकर रहेगा। वो रोने लगी, अम्मा के हाथ पांव फूलने लगे। वो सोचने लगी, चुप हो जाओ बेटी, शम्स को कुछ नहीं बताना, हम सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। अम्मा मैं आपको बताना भूल गई थी, शम्स 3 हफ्तों के लिए दूसरे मुल्क जा रहे हैं। अम्मा ने सुबह डॉक्टर कायनात से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले ली। जब हम लोग डॉक्टर कायनात के पास गए, कायनात ने देख लिया। क्या हुआ? इसका वजन इतना कैसे बढ़ गया? लगता है इंसान का नहीं किसी हाथी का बच्चा पैदा कर रही है। आज मैं इसका खुद अल्ट्रासाउंड करूंगी। डॉक्टर कायनात कुछ देर के बाद कमरे से निकली। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बेटा सब ठीक तो है? डॉक्टर कायनात ने राबिया को बाहर भेजा। इसके बाद अम्मा से मुखातिब हुई और कहने लगी, आंटी मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे लग रहा है राबिया के पेट में एक अजीब व गरीब मखलूक परवरिश कर रही है। वो किसी इंसान का बच्चा नहीं, जिनका बच्चा लग रहा है। इसका वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके पैदा होने में बहुत तकलीफ़ होगी राबिया को, लेकिन राबिया इसको पैदा नहीं कर पाएगी। अम्मा बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी ये सब क्या हुआ? आंटी आप मुझे कुछ बताएंगी? सोच में पड़ गई और कहने लगी, कल रात वाली वाक़या उसे बताने लगी। राबिया उसे उसके कमरे में बुरे हालत में नज़र आई और बेटी तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम किसी को नहीं बताना वरना मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। आंटी ये कोई बताने वाली बात है? मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? मुझे तो ये अलग माजरा लग रहा है। आप ऐसा करें, इसे किसी पहुंच वाले बुजुर्ग के पास लेकर जाएं। इसका हल उसी के पास होगा। बेटी तुझे तो पता है आजकल जाली दिखावे वाले ढोंगी बाबा हैं। सब लोग इस नेक काम को अपने पैसों की वजह से चला रहे हैं। और माँ रोते रोते सिसकियाँ भरने लगी। आंटी आप पहले ऐसा करें, छोटा सा कुरान पाक राबिया के गले में बांध दें। आप हर वक्त इसके पास चारों कुल इसके पास पढ़ा करें। देखना अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। सारी हकीकत उसके बाप को बताने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं क्या करूं राबिया के अब्बा, आपको तो पता है जिन्नाती मखलूक मेरी बेटी को बर्बाद कर रही और मैं कुछ ना कर सकती, इसके शोहर को भी बता नहीं सकती। मेरी जिंदगी मेरी बेट की मौत के धाव लग गई। हिम्मत से काम लो और मुझे भी काम लेने दो, वरना राबिया देख लिया तो वो क्या समझेगी। अब्बा ये कहकर फौरन बाहर चले गए। अम्मा ने कमरे में झांका तो राबिया सो रही थी। अम्मा ने चारों कुल का हिसार किया, किचन में चली गई। भूख तो मर चुकी थी लेकिन अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। उसका शौहर आया और कहने लगी, आप कहाँ गए थे? मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। राबिया को कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर चलना है। मगर अब्बा इस वक्त कहाँ जाना है? बेटा तुम्हारे बिगड़े हुए हालत एक बुजुर्ग को दिखाना है, तुम्हें दम वगैरह करवाने के लिए। वो गुस्से में कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोनों बीवी शौहर एक दूसरे को देखने लगे और बाप ने कहा, बेटी तुम इतनी तल्ख तो पहले नहीं थी, लेकिन अपने बाप की एक बात नहीं मानोगे। अब्बा ने कहा। वो घूरती निगाहों से अब्बा को देखने लगी। चलो ठीक है, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी और ना ही खुद को दम करवाऊंगी। इसने नफरत से मुंह बना लिया, लेकिन बहुत से हिम्मत समाजत के बाद वो तैयार हो गई जाने के लिए। मगरिब की नमाज पढ़कर वो लोग रवाना हो गए। जब शहर ख़त्म हो गए, एक वीरान जगह नज़र आई। अब्बा ने गाड़ी लाकर साइड में खड़ी कर दी और दोनों को बैठने का इशारा कर दिया। अब्बा खुद झोंपड़ी के अंदर चले गए। झोंपड़ी के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने अब्बा को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने देर कर दी, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है। अब्बा ने सारी हकीकत उसे बता दी। उसने आंखें बंद करके मुराकबे में चला गया। अब्बा ने देखा इस झोंपड़ी में हर चीज़ मौजूद है, साफ़ सुथरी। अब्बा को यहाँ पर एक सुकून महसूस होने लगा। अब्बा कुछ देर वहाँ बैठे रहे। अब्बा को ऐसा लग रहा था उसका सब बोझ हल्का हो गया।
कुछ देर बाद उस बुजुर्ग ने आंखें खोली और पूछने लगा, आपके घर में एक दरख्त है? जी हाँ, एक बड़ा दरख्त है जामन का, वही फसाद की जड़ है। मैं 4 तावीज़ें आपको दे रहा हूँ, आज रात वो चारों तावीज़ें उसके साइड पर गाड़ देना, सुबह मजदूरों को बुलवाकर उसे काट देना। मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन डरना नहीं। आप लोग ऐसा करें, उसको सूखी लकड़ियों और घास डालकर उस जगह को आग दे देना। आज रात आप दोनों मियाँ बीवी को बेटी के कमरे में जागना होगा, क्योंकि बेटी सो जाए तो उसके आसपास सूरत बकरा लगानी है। सूरत बकरा रात को बार बार लगानी है जब तक सुबह की अजान ना हो। फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद आप लोग भी सो जाना। काम वगैरह ख़त्म करके उसके बाद आप अकेले ही मेरे पास आना। वैसे आपकी बेटी के बाल कैसे हैं? मेरी बेटी के लंबे बाल हैं, उसकी वजह से वो लोग उस पर आशिक हो गए हैं। हर रोज़ाना जिन्नातों के लाखों बच्चे पैदा होते हैं। आजकल जंगल भी शहर बन चुके हैं, इसीलिए इसके पेट में एक जिन का बच्चा है। वो बाल खोलने की वजह से जिन्नात उस पर आशिक हो गए हैं। खैर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। घर पहुंचकर उन्होंने जामन के दरख्त के नीचे तावीज़ गाड़ने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। उसके बाद चारों कुल पड़े, फिर काम आसान हो गया। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक उसकी माँ ने राबिया की सर हकीकत बता दी। वो रोने लगी। उसके बाद रोने की आवाज़ें आ रही थी। खैर, उसके माँ बाप ने उसे नींद की दवा पिलाकर सुला दी। उसके बाप ने उससे सूरत बकरा धीमी सी आवाज़ में लगाकर बैठ गए। सारी रात जागना मुश्किल था, लेकिन औलाद की मोहब्बत में ये माँ बाप जाग गए। सुबह होते ही अब्बा ने मजदूरों को बुलवाकर जामन का दरख्त काटने की कोशिश की। मजदूरों को दांत पसीना आ गया। फिर अब्बा ने कुछ लकड़ियाँ घास मंगवाकर खड्डे में डाल दिया। उस पर तेल छिड़ककर उस जगह पर आग लगा दी, लेकिन उसकी आंखें भटी की भटी रह गई। जैसे शोलों के साथ जिन्नातों की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी, जैसे कि बहुत सारे जिन्नातों की मखलूकों की रोने की आवाज़ आ रही थी। देखते ही देखते एक अंदरूनी बू घर में फैल गई। वो बू इतनी तेज़ महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था अंदरूनी मखलूक बाहर आने की कोशिश कर रही हो। राबिया और उसकी माँ एक दूसरे को ज़ोर से बाहों में लेकर थर थर कांप रहे थे। उसके अब्बा ने दोनों को बाहों में लिया, कुरानी आयत का विर्द करने लगे। उनके दिल को सुकून मिला। 3-4 घंटों के बाद आग बुझ गई। अब्बा राबिया और उसकी माँ को लेकर कमरे में चले गए। उसके बाद अब्बा साईं के पास चले गए। वो देखकर मुस्कुराए और अब्बा ने सारा हकीकत बता दिया। वो देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, अरे बला तो टल गई, लेकिन इस मुसीबत को टालनी है जो तुम्हारी बेटी के पेट में परवरिश कर रही है। ये 4 तावीज़ें दे रहा हूँ, बच्ची को घोल कर पिला देना और बच्ची को कह देना कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बाथरूम लगे तो बाथरूम में जाने की ज़रूरत हो तो बाथरूम में चली जाए और आंखें बंद करे, उस चीज़ को ना देखे और मुंह पर कपड़ा रख दे ताकि वो बर्दाश्त कर सके। बच्ची की माँ को कह देना उसके साथ बाथरूम में चली जाए। बच्ची की माँ को कह देना वो भी अपनी आंखें बंद करे और कुछ ना देखे। जब वज़न हल्का हो जाए तो अपने शौहर को बता देना कि बच्चा ज़ाया हो गया। उसके बाद तुम अपनी बेटी राबिया को मेरे पास लेकर आना। राबिया 4 दिन मुसलसल तावीज़ पीती रही। 5वें दिन उसे मोशन हो गए। वो बार बार बाथरूम जाती रही। उसके बाथरूम जाने से उसकी बू हल्की हो गई। 2 दिन के अंदर उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी कमज़ोरी जाती रही। 2 दिन के बाद राबिया अपनी पुरानी हालत में आ गई। तीसरे दिन उसके माँ बाप उसे लेकर बुजुर्ग के झोंपड़ी में गए। बुजुर्ग ने सर झुकाए विर्द करता जा रहा था और राबिया को कहने लगा, बेटा तुम इस बात को एक हादसा समझ लो, तुम इस बात को भूल जाओ और अपने शौहर को इस बारे में नहीं बताना। मैं तो पता है ये बात हर मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बगैर कसूर के कसूरवार ठहरी जाओगी। नमाज पाबंदी से पढ़ना और अपने बालों को हमेशा बांधे रखना, ख़ास तौर मगरिब के वक़्त अपने बालों को हमेशा बांधना। जब राबिया ने ये खबर अपने शौहर को सुनाई तो शम्स बहुत नाराज़ होने लगा। मुझे पता है तुमने लापरवाही की होगी, इसीलिए तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो गया। पहले से ही बता देती तुम लापरवाही करती। नहीं नहीं, मैंने कोई लापरवाही नहीं की, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी तो यही हुआ। रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अम्मा अब्बा मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया था। आप इतने दूर बैठे हुए थे, लेकिन आप क्या कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शम्स ने राबिया की बात सुनी
اور صرف اسے تسلیاں دینے لگا۔ رابعہ نے میکے آنے کو ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ ماں باپ کے گھر کا نام سنتے ہی اسے بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس کے اس رویے سے شوہر اور ساس پریشان ہو گئے تھے، مگر ابا نے دیکھا رابعہ کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس نے گھر بیچ دیا اور دوسرے جگہ میں شفٹ ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ تھی، رابعہ اپنے شوہر کی غربت سے گھبراتی تھی۔ جب بھی شوہر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا وہ تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ جب رابعہ کو پتہ چلا وہ پھر سے امیدوار ہے، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے زبردستی ڈاکٹر کائنات کے پاس لے کر گئی۔ اس کی ضد ایک ہی تھی، اسے بچہ پیدا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کائنات کے سمجھانے کے باوجود اس کے دل میں وہی خوف تھا۔ الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ بالکل ٹھیک آیا، لیکن 9 مہینے اس نے جس طریقے سے گزارے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ یوں ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اماں اسے اپنے گھر لے کر آئی۔ وہ کہیں ڈر کی وجہ سے ساس اور شوہر کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتا دے۔ اماں میں مر جاؤں گی، یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ دن بھی آ گیا جب اسے ہسپتال لے گئے۔ تکلیف اور درد کی وجہ سے نرس اسے حیران سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیڈ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کائنات کو دیکھتی ہی اسے منت سماجت کرنے لگی۔ ڈاکٹر کائنات آپ میری جان بچا لیں۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا اس نے بچہ پیدا کیا، لیکن وہ بچے کو دیکھنے سے انکار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈانٹا۔ اس کے بعد اس نے آنکھ کھولی۔ ایک پیارا سا چھوٹا سا بچہ جو ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے بعد اللہ نے پھر اسے جڑوا 2 بیٹے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھکتی نہیں تھی۔ اب ہر وقت چوٹیاں اس کے کمر پر لٹکتی رہتی تھی۔ اسے ایک سبق نصیحت ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔